یہ قصر کا عبادت خانہ ہے. پوتیفار اور بانو زلیخا اور دیگر اہلیان قصر یہاں عبادت کرتے ہیں. ہم اپنے خداؤں کی یہاں نگہداری کرتے ہیں. یعنی آپ کے خدا جاؤ مکان کے محتاج ہیں؟ تو ظاہر ہے دھوپ اور بارش میں زیر آسمان تو نہیں ہونا چاہیے نا. درود بر جناب ہونیفر پیشکار اعلیٰ. عموماً قصر کے دورے کے لیے صبح کا وقت مخصوص ہے، آج خلاف معمول اس وقت کیسے؟ یہ ذات شیف کو قصر دکھانے کے لیے لایا ہوں. میں نے چاہا کہ وہ قصر اور اہلیان قصر سے آشنا ہو جائے. کیا ہو گیا ہے؟ قصر سے کچھ جواہرات چوری ہو گئے ہیں. یہ قصر کے داخلی دربان ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو چلو چل کر دیکھتے ہیں. دونوں کو ہی نگہبانوں اور ساکنان قصر کی عبرت کے لیے تختہ دار پر چڑھا دو. اگر اقرار نہ کریں تو حتماً ایسا ہی کرو. میں نے بالکل چوری نہیں کی ہے، میں بے قصور ہوں. اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن جناب ہنیفر، خداؤں کی قسم میرا کوئی قصور نہیں. سب جانتے ہیں میں نے کبھی چوری نہیں کی. اصل میں جس روز چوری ہوئی وہ میری نگہبانی کا دن نہیں تھا. پتہ نہیں یہ مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہیں. آخر کار تو ہمیں مجرم کا پتہ چل ہی جائے گا. بہتر ہوگا کہ خود ہی اقرار کر لو اور مسئلے کو یہیں ختم کر دو. اس کا کہنا ہے کہ تم اس کا دھیان بٹتے ہی اس کی ماموریت کی جگہ پر داخل ہوئے تھے. میں اس کی ماموریت کی جگہ پر؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا. اس طرح بتاؤں کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی. یعنی اس قصر میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو. نگہبان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے دوران نہایت ہوشیار اور چوکنا رہے. تمہیں سونا نہیں چاہیے تھا. تم خطا کار ہو. تم نے ایک تو اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اور دوسرا یہ کہ تمہارا کوئی گواہ بھی نہیں ہے. لیکن عالی جناب میں چور نہیں ہوں، مجھ پر رحم کیجیے. مجھے افسوس ہے. نینیفر قبطہ کو آزاد کر دو اور اس کو زندان میں ڈال دو. عالی جناب میں چور نہیں ہوں، خداؤں کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے. مجھ پر رحم کریں. تم پر خداؤں کی لعنت ہو نینیفر. تم پر خداؤں کا قہر ٹوٹے. انہیں حقیقت کیوں نہیں بتا دیتے؟ منہ بند کرو. عالی جناب میں چور نہیں ہوں، سچ کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے. عالی جناب میں چور نہیں ہوں. میں چور کی شناخت کر سکتا ہوں. نہیں برخوردار، یہ تمہارا کام نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ چور کی شناخت ہو؟ کیوں نہیں؟ تم کیسے چور کی شناخت کرو گے؟ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے. وہ فیصلہ دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے. تمہیں یقین ہے؟ جی جناب حنیفر، آپ چاہیں تو آزما لیں. دیکھ لیتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے. بہتر ہوگا اعتراف کر لیں اور اپنے جرم کو مزید سنگین نہ کریں. اصل میں جس دن قصر سے جواہرات چوری ہوئے میں پیرے پر تھا ہی نہیں. میں بے گناہ ہوں. میں نے چوری نہیں کی، میرے پاس گواہ بھی نہیں. لیکن میں نے نینیفر کو جواہرات کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا. بے گناہ کون ہے میں جانتا ہوں.
तुम खौफ में मुब्तला मत हो और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाब हुनीफर से दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रुदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा, बस एक इशारे की देर है। जनाब रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में 2 जानों बिठा दें। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ़ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ाते हैं। नहीं, मैं एतराफ़ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ़ कर लोगे। आफरीन युज़ार सेफ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युज़ार सिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है। देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युज़ार शेफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युज़ार शेफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गज़ा नहीं ले जा सकता। युज़ार शेफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिक़दार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युज़ार शेफ के क़याम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है? नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युज़ार शेफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है?
शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाज़त फरमाए तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कस्र में गुलाम की मौजूदगी कस्र के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं। युज़ारसीफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साहब औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी युज़ारसीफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज युज़ारसीफ ने चोर की शनाख्त के लिए जो चाल चली है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ युज़ारसीफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे युज़ारसीफ ने नैनिफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। मैं जनाब पुतीफार का खाना लेने आया हूँ। युज़ार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास है। उसने खूब अपनी जगह बनाई है। पुतीफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंद मुतबन्ना बनाने का इरादा रखते हैं। रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त युज़ारसीफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मिक़दार ये कहे ग़िज़ा दे दें। निगहबानों के लिए ग़िज़ा 5 अफराद की। अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को ग़िज़ा की जरूरत नहीं? तो क्या माबद के खुदा खाना भी खाते? नहीं, नहीं खाते। लेकिन क्या बंदों की ग़िज़ाओं को मुतबरक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए? और जब तमाम खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो ग़िज़ा मुतबर्रक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत 4 गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज्यादा मोटे ताजे हो जाते हैं।
काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज खुदाओं की बरकत से मोटे ताजे होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हस्बे जरूरत ग़िज़ा भी मुयस्सर नहीं। और क्या अगर खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देंगी। बस करो। अगर खादमी ने मोहब्बत से शर्म नहीं करते, कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ हया करो। चलो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि यूज़ार सीख के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो, जनाब हुनीफर इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नैनिफर किप्ता की रुसवाई और एक ये है काहिनों की रुसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नैनिफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हुनीफर। अच्छा, तो क्या हो रहा है इज़ार से? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। इज़ार सेठ का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था। ये उनकी इरादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्ची के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ यूज़ार से। इनके ग़िज़ा हर रोज की तरह इन्हें दो जब तक यूज़ार से वापस लौटे। चलें। यूज़ार सेफ कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ, आता हूँ। यही मोहब्बत और खुलूस पहले क्यों नहीं था? पहले यूज़ार सीफ जो नहीं था। यूज़ारसी, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विदा बना लेते हो? इल्मे सहर? नहीं तो बानो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महर व मोहब्बत जानता है। इसे सहर व जादू की जरूरत भी क्या?
کل سے یوزار سیف باورچی خانے کی نظامت کے ساتھ ساتھ ہمارا سفرے دار بھی ہوگا.